नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर में भाजपा राज्य अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के नेतृत्व में वक्फ हटाओ विरोध प्रदर्शन। डॉक्टर अंबेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण, दलित संगठनों की ओर से एकता दिवस और संगीत नुड़ी नमन कार्यक्रम। सीएम सिद्धरामैया ने राजस्व लक्ष्य निर्धारित किए, अधिकारियों को संग्रह बढ़ाने को कहा। भाजपा नेताओं ने विधायक यत्नाल के खिलाफ कार्यवाही की मांग। संभल जाने की जिद पर अड़े राहुल, प्रशासन से नहीं मिली इजाजत, बोले ये विशेष अधिकारों का हनन है। डिप्टी सीएम पद को लेकर भी एकनाथ शिंदे ने फंसा दी पेच, ऐसा क्या बोले जो हंस पड़े फडणवीस और पवार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के नेतृत्व में वक्फ हटाओ देश बचाओ विरोध मार्च निकाला गया। आज शहर के गांधीगंज में रहे बसवेश्वर मंदिर में परिसर के सम्मुख एक मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग एकत्र हुए। यहां पर नेताओं ने संबोधन किया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व मंत्री अश्वत्थ नारायण, बीदर जिले में रहे सभी विधायक, एमएलसी, पूर्व विधायक सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता आदि उपस्थित हैं। कैमरामैन पुराज का कवरेज। मुख्यमंत्री सिद्धरामಯ್ಯ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಂಧುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬೀದರ್ ಬರಲಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಬರಲಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬರಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಾಡಿನ ರೈತ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ನಾಡಿನ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವ, ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ರೈತರನ್ನ ಒಕ್ಕಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಹಿಂದೂಗಳ ಹತ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತೇನು ಅನೇಕ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೈತರು ಆತಂಕ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಸಭೆನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ತನಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖೇನ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇರ್ತೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ವಕ್ಫಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ಈ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರನು ಏನೋ ಕಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತಮ್ಮ ಏನೊಂದು ಗೊಂದಲ ನೀತಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖವಾದಂತ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಏನೊಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 3 ಅಂಗಗಳಿವೆ, 3 ಅಂಗಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ವಕ್ಫ್ ಏನಿದೆ, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ
ಈ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಅಮಾಯಕ ರೈತರ, ಬಡವರ, ಮಠಾಧೀಶ, ಮಠದ ಹಾಗೂ ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳ ಜಮೀನನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಒತ್ತಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕಬಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಏನೊಂದು 1974ರ ಬೋರ್ಡಿನ ಒಂದು ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ವಿಜೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ನಿಂದ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೋ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಡಿಮೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು, ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಯಿತು. ತಂಡ ಎಂದು ಬೀದರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ತಂಡದ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ಚಳವಳಿ ಆಗಮಿಸಬಹುದು ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತೇನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. 3 ಹಗರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಏನು ರೈತರ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಬ್ಬ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೀದರ್ಗೆ ತಂಡ ಆಗಮಿಸಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. 9ನೇ ತಾರೀಕು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾರೆ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಯಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಅವರನ್ನ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಳ್ಳಿನ ಸರ್ದಾರ ಆಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ವಿಜಯನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರ ಪರವಾಗಿ? ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜಮೀನಿನ ಪರವಾಗಿ, ಶೋಷಿತರ ಪರವಾಗಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತಹ ಮೂಲ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹಗರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದರ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಬುಡಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ವಕ್ಫ್ ಜಮೀರನ್ನ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು,
अनिल कुमार बेलदार ने कहा कि संविधान संरक्षण समिति के महासचिव ने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 68वीं पुण्यतिथि के तहत दलित संगठनों के संघ ने इस वर्ष भी दलित संगठनों की ओर से एकता दिवस और संगीत नुड़ी नमन कार्यक्रम मनाने का निर्णय लिया है। बुधवार को शहर के जिला प्रेस भवन में दलित संगठन महासंघ द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे उद्घाटनकर्ता और मंत्री रहीम खान मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने कहा कि सांसद सागर खंडरे और गैर दलीय जिले के विधायक और विधान परिषद सदस्य भाग लेंगे। विशेष रूप से ठंड अधिक होने के कारण जनता की सुविधा के लिए इस वर्ष 68वां महापरिनिर्वाण कार्यक्रम हर वर्ष सुबह 9 बजे के बजाय इस वर्ष सुबह 10 बजे निर्धारित किया जा रहा है। हमने संघ की ओर से जिला कलेक्टर को एक अनुरोध प्रस्तुत किया है। प्रभारी मंत्री ने भी इस पर सहमति जताई है। रात में ठंड होने के कारण मंचीय कार्यक्रम भी सुबह 10 बजे होगा और उसके बाद दिन भर 15 से अधिक भजन मंडलियां आयोजित की जाएंगी। बाबा साहेब अम्बेडकर को संगीत से सम्मानित किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम के लिए जिला दलित संगठन महासंघ की ओर से हम बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी संघ संगठन के नेताओं जनता से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। 2024 परम पूज्य विश्वज्ञानी संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ಅವರ 68ನೇ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಐಕ್ಯತಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಕರಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು। ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಳಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯರು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 9ರ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಗೌರವ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಹತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಐಕ್ಯತೆ ದಿನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ಜಿ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಚಿವರಾದಂಥ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಜಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಬೀದರ್ನ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಕ್ಕು ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನುಡಿನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಂದನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ। ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಮಾನವಂದನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮ್ನೂ ಚಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಜನರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಂಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ಚಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರ ಕಂಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ 10 ಗಂಟೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ನುಡಿನಮನ ಸಂಗೀತ ನುಡಿನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ತಂಡಗಳ ಮುಖಾಂತರ। 1956 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಉಸಿರೆಳೆದಂಥ ದಿನ ಇದು। ಭಾರತದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದಲಿತ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೋವು ಮತ್ತು ದುಃಖದ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ। ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುಖದ ಆಸೆಗೆ ಒಳಪಡದೇನೆ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಘನತೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಮಾನವ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ।
ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು 1956 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆನೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राजस्व संग्रह लक्ष्य तक पहुंचना निश्चित करें। उन्होंने इस वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व संग्रह की समीक्षा के लिए विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष के लिए 3.71 लाख करोड़ रुपए का परिव्ययी बजट पेश किया था, जिसमें करीब 60,000 करोड़ रुपए गारंटी योजनाओं के लिए थे। बजट में घोषित योजनाओं और कार्यों को लागू करने के लिए सिद्धरामैया हर महीने राजस्व संग्रह बैठकें बुला रहे हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर, आबकारी और स्टैंप एवं पंजीकरण विभाग शामिल है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार आबकारी विभाग का लक्ष्य 38,525 करोड़ रुपए था, जिसमें से 23,600 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है, जो इस वित्तीय वर्ष के लिए 61.26% है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 1,432.23 करोड़ रुपए अधिक है। मुख्यमंत्री ने सतर्कता अधिकारियों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने का निर्देश दिया है। पूर्व गृह मंत्री राग ज्ञानेंद्र सहित कर्नाटक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मांग की है कि पार्टी के केंद्रीय नेता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली आंतरिक कलह को समाप्त करें। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी मौजूद थे। बैठक में नेताओं ने राज्य पार्टी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कुछ भाजपा नेताओं के हमले पर चिंता जताई। ज्ञानेंद्र ने कहा, केंद्रीय नेताओं ने हमें जल्द ही इसे खत्म करने का आश्वासन दिया है। पार्टी में कई लोग वरिष्ठ भाजपा विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विजेंद्र और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यत्नाल को कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। ज्ञानेंद्र ने कहा कि उनके जैसे हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी को खड़ा किया है और किसी को भी इसे कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश पार्टी प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं की आलोचना करके वे पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूध की खरीद में वृद्धि के साथ कर्नाटक दुग्ध महासंघ केएमएफ दिसंबर के अंत तक प्रत्येक पाउच में अतिरिक्त 50 मिलीलीटर की आपूर्ति जारी रखेगा और ₹2 अधिक शुल्क लेगा। जून में जब केएमएफ ने अतिरिक्त आपूर्ति शुरू की थी तो उसने कहा था कि यह एक अस्थायी घटना है, जिसकी समीक्षा दिसंबर में की जाएगी, जब आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता इसके आदी हो चुके हैं। दूध की खरीद प्रतिदिन 92 से 93 लाख लीटर है। लगातार बारिश और चारे की उपलब्धता के कारण दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है। हम दूध को सड़क पर नहीं फेंक सकते। हम हर पाउच में 50 मिलीलीटर अतिरिक्त आपूर्ति जारी रखेंगे। अब तक इसे जारी रखने में कोई समस्या नहीं दिख रही है। पिछले साल की तुलना में इस समय खरीद 10 लाख लीटर अधिक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देखिए बात स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। राहुल गांधी संभल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन से उन्हें इजाजत नहीं मिल रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर रोके जाने के बाद कहा कि वह पुलिस के साथ अकेले संभल जाने को तैयार है, लेकिन उन्हें इसकी भी अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा है कि उन्हें संभल जाने से रोका जाना लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके विशेष अधिकारों का हनन है। संभल रवाना होने के बाद दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के पर राहुल ने संवाददाताओं से कहा, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं मगर पुलिस मना कर रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष के नाते मेरा अधिकार बनता है कि मैं वहां जा सकता हूं, मगर तब भी वह मुझे रोक रहे हैं। यह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के मेरे अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा, मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वह भी बात नहीं मानी। अब कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद वह हमें जाने देंगे। राहुल ने संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि यह संभल जाने से रोका जाना लोकतंत्र के खिलाफ है। हम संभल जाकर देखना चाहते हैं कि वहां क्या हुआ। हम लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो संवैधानिक अधिकार है मुझे उससे वंचित किया जा रहा है। यह संविधान को खत्म करने वाला हिंदुस्तान है, अम्बेडकर जी के संविधान को खत्म करने वाला हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। राहुल के साथ मौके पर मौजूद उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल को रोके जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, संभल में जो हुआ वह गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक विशेष अधिकार हैं जो बाकी लोगों से अलग हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2.5 साल के कार्यकाल की तारीफ की और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या कल आप डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे, तो उन्होंने कहा कि शाम तक रुको, बताते हैं। इस दौरान शिंदे ने सीएम पद को लेकर भी बड़ा बयान दिया। शिंदे ने कहा है कि 2.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने मेरे नाम की सिफारिश की थी, आज मैंने उन्हें समर्थन दिया है। शिंदे ने यह भी कहा है कि ये सवाल ही नहीं था कि मुझे क्या मिल रहा है, हमारे मन में केवल यह भावना थी कि महाराष्ट्र को क्या मिला, इसी पर हमने काम किया। महायुति में कोई ऊंच नीच नहीं है और सब कुछ ठीक है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि 2.5 साल में महायुति ने हमारी टीम ने जो भी काम किया है वह उल्लेखनीय है। इसे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, इसकी हमें बहुत खुशी है। उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हिंसा हुई थी, जिसमें कई आरोपी गिरफ्तार हुए थे। इनमें से कुछ आरोपी मुरादाबाद जेल में बंद हैं, जिनसे मिलने समाजवादी पार्टी एसपी के कुछ नेता सोमवार को पहुंचे थे। उन्होंने मुरादाबाद जेल में बंद संभल हिंसा के सभी आरोपियों से मुलाकात की। इसे अवैध मुलाकात करार देते हुए कार्यवाही की गई है। मामले को लेकर डीजी जेल में मुरादाबाद जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव और डिप्टी जेलर प्रवीण सिंह को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा जेल अधीक्षक पीपी सिंह के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश शासन को भेजी गई है। यह कार्यवाही इस बात को लेकर भी की गई है कि सपा नेताओं ने जेल में बंद आरोपियों से बिना किसी आधिकारिक अनुमति के मुलाकात की, जो जेल के नियमों का उल्लंघन है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाई गई। इसी घटना में सुखबीर सिंह बादल की जान बच गई। इसी मामले पर दिल्ली विधानसभा में आज अरविंद केजरीवाल ने बोलते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली विधानसभा में कहा, पंजाब पुलिस की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया है। मैं पंजाब पुलिस की तारीफ करता हूं। पंजाब को बदनाम करने बड़ी साजिश हो रही है। इस घटना के बाद पूरी बीजेपी और मीडिया पंजाब में कानून व्यवस्था और सवाल उठाने लगी है। पंजाब की एक घटना पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में मर्डर फिरौती की कॉल आ रही है तो कह रहे हैं कि दिल्ली में ये कोई मुद्दा ही नहीं है। गृहमंत्री के घर के 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में सैकड़ों घटना हो रही है। क्या वीआईपी की सुरक्षा जरूरी है और आम आदमी की सुरक्षा जरूरी नहीं? उन्होंने आगे कहा, जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। मैं बहुत दिनों तक चुप रहा, लेकिन अब नहीं। मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूँ, जहाँ कहीं भी घटना घटती है। दिल्ली की गली गली में आज नशा बिक रहा है। ये ड्रग कहाँ से आ रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। दिल्ली में कई जगहों पर नशे की बड़ी खेप मिली है। ये ड्रग गुजरात से आया था। चुनाव आयोग भी कह चुका है कि गुजरात नशे का हब बन गया है। अंकलेश्वर, बड़ोदरा में ड्रग की फैक्ट्री है। हजारों करोड़ों की ड्रग मुद्रा पोर्ट से पकड़ी गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में गुजरात में 2.5 लाख करोड़ की ड्रग पकड़ी गई। समुद्र के रास्ते ड्रग गुजरात पहुंचता है, वहां पर फैक्ट्री लगी है। तैयार ड्रग को फिर यहां से पूरे देश में भेजा जाता है।
राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा किए जाने पर सदन के चेयरपर्सन सभापति जगदीप धनखड़ विपक्षी दलों पर भड़क गए। किसानों के मुद्दों को लेकर विपक्ष के नारेबाजी करने पर धनखड़ ने कहा कि विपक्ष सिर्फ मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है और ड्रामा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ के आंसू से किसानों का हित नहीं पूरा होगा। हंगामा कर रहे सांसदों की आलोचना करते हुए धनखड़ ने कहा, नारेबाजी और खड़ियारी आंसू बहाने से किसानों का हित पूरा नहीं होगा। नारेबाजी कर रहे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से उन्होंने कहा, आप केवल इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप समाधान नहीं चाहते, किसान आपकी आखिरी प्राथमिकता है। सभापति ने कहा, पिछले सप्ताह सदन में हंगामे के कारण कोई कामकाज नहीं हो सका और अफसोस है कि उस दौरान एक भी नोटिस किसानों के मुद्दे पर नहीं दिया गया। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों को रोकते हुए धनखड़ ने कहा, भविष्य में मैं यह ध्यान रखूंगा कि आपका आश्वासन एक रणनीतिक थी। मैंने आपको इस आश्वासन पर अनुमति दी कि आप लोग मर्यादा और अनुशासन का पालन करेंगे। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप की इस घोषणा के बाद से इन देशों के बीच व्यापार संबंधों को लेकर हलचल बढ़ गई है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान ट्रंप ने ट्रूडो को सुझाव दिया कि कनाडा अगर इन मुद्दों को हल नहीं कर सकता तो वह अमेरिका का 51वां राज्य बनने पर विचार करे। ट्रंप के इस बयान के बाद दोनों देशों के संबंधों पर नई बहस छिड़ गई। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ट्रूडो को साफ शब्दों में कहा कि कनाडा सीमा मुद्दे और व्यापार घाटे को ठीक नहीं कर सकता तो हम कनाडा के उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। इस पर ट्रूडो ने ट्रंप को मनाने की कोशिश की। ट्रूडो ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो कनाडा की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, तो क्या आपका देश अमेरिका को चूना लगाने के लिए बना है? भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पर इजरायल के खिलाफ वोटिंग करके दुनिया की कूटनीतिक महारथियों को चक्कर में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव में भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा दिखा। इतना ही नहीं, भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में और इजरायल के खिलाफ में वोटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जबरदस्त कूटनीति ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पूरी दुनिया इस सोच में पड़ गई है कि क्या ये भी वही भारत है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला होने के बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सबसे पहले फोन किया था और पूरी तरह इजरायल के साथ खड़े होने का न सिर्फ भरोसा दिलाया बल्कि नेतन्याहू के साथ खड़ा भी रहा। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के खिलाफ पहले भी कई प्रस्ताव लाए गए, लेकिन भारत ने तब या तो इजरायल के पक्ष में वोटिंग किया या फिर मतदान प्रक्रिया से विरत रहा। मगर इस बार भारत खुले तौर पर इजरायल के खिलाफ वोटिंग में फिलिस्तीन के साथ खड़ा नजर आया। भारत की इस रुख ने विश्व के बड़े बड़े कूटनीतिज्ञों को भी चक्कर में डाल दिया है। दुनिया सोच रही है कि पीएम मोदी की कौन सी ऐसी डिप्लोमेसी है जिससे वह पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस करिश्माई नेतृत्व की हर तरफ चर्चा है। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव पर फिलिस्तीनी के पक्ष में खड़े होने के बावजूद इजरायल ने भारत से कोई नाराजगी जाहिर नहीं की है। आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में भाजपा राज्य अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के नेतृत्व में वक्फ हटाओ विरोध प्रदर्शन। डॉक्टर अंबेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण, दलित संगठनों की ओर से एकता दिवस और संगीत नुड़ी नमन कार्यक्रम। सीएम सिद्धरामैया ने राजस्व लक्ष्य निर्धारित किए, अधिकारियों को संग्रह बढ़ाने को कहा। भाजपा नेताओं ने विधायक यत्नाल के खिलाफ कार्यवाही की मांग। संभल जाने की जिद पर अड़े राहुल, प्रशासन से नहीं मिली इजाजत, बोले ये विशेष अधिकारों का हनन है।
डिप्टी सीएम पद को लेकर भी एकनाथ शिंदे ने फंसा दी पेच, ऐसा क्या बोले जो हंस पड़े फडणवीस और पवार। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।